ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग सर। ओके। आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये अपना करंट अफेयर बेस्ड सेशन है। तो अब क्योंकि 2-3 दिन ही बचे हैं अपने पास, 7 है, 8 है, 9 है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो 9 तक कंक्लूड कर लेंगे। तो 7, 8, 9 में अब जो भी टाइमिंग रहेंगे, टाइमिंग हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे रहे, बट सेशन थोड़े से लंबे रखेंगे। जैसे आज का जो मैं सोच के आया हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से भी हम करंट अफेयर का कुछ ज्यादा देख नहीं पाए थे, तो आज मोटे मोटे सारे टॉपिक्स एक बार गो थ्रू होके सबको निपटा देंगे करंट अफेयर के। ठीक है, तो जितनी भी देर चलेगा, 2 घंटे 3 घंटे, तो हम उसी हिसाब से इसको कर लेंगे, जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी उससे। ओके कुलदीप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो लास्ट में हमने कई सारे, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने जो जो टॉपिक देखे थे। तो रूरल टूरिज्म वाला टॉपिक हमने देखा था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखा, लॉजिस्टिक पॉलिसी देखा, एमएस स्वामीनाथन, यूपीआई, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला इश्यू हमने देखा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी जो हमारी है, तो उसके रिगार्डिंग हमने देखा था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ईस्टर्न वेस्टर्न, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, 15th फाइनेंस कमीशन। उसके कंटेक्स्ट में जैसे 4-5 जो पैरामीटर होते हैं आपको वो ध्यान रखने हैं। एरिया है, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, तो वो एटलीस्ट 41+1 42%, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सीबीडीसी, एमएसएमई, मोनेटाइजेशन, गिग इकोनॉमी, ठीक है, ये मोटे मोटे हमने देख लिए थे। अब हम जो बाकी आगे वाले हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार वीडियो ऑन कर लो, जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन, ताकि और थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज गिग इकोनॉमी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिग इकोनॉमी, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दैट, एंड व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद गिग इकोनॉमी। तो दो सेंस में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, थिंक एंड आंसर। जो आंसर करना चाहेंगे दे कैन रेज देयर हैंड्स। हाँ, यस वैभव, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Uh, so the gig economy is a relationship, employer-employee relationship that is different from the traditional relationship, whereby the employer is bound to give certain some employment benefits to the employee, and there is the relationship is more on a formal side, whereby they do have sort of a contract, and they are bound in a relationship which is more of a regulated one. Gig economy, on the other hand, is more of an informal sort of a employer-employee relationship, whereby the social security and other benefits are not given to the employees. Okay, who wants to add or counter something? What are the advantage and what are the challenges? Sir, the advantages of gig economy is that it provides, number one, it fuels the digital economy. It helps taking the digital economy forward. So, secondly, it also increases the employment, because Okay, even if it is informal employment, but employment generation does happen in this manner. ठीक है। The negative will be the social security is hampered on a large scale. Uh, the employee rights, etc. So that will be on a negative side. It is side and ठीक है, स्वर्णिमा। Yes, sir. So, gig economy can be defined as an employment setup which falls outside the traditional employer-employee relationship, wherein both the employer and the employee retain a very good amount of flexibility when it comes to the relationship between the two. India has been seeing a booming gig economy in the modern times, especially with the advent of digitization.
and internet penetration throughout the country. So the gig economy offers numerous benefits. For example, a degree of flexibility to the workers. They can take ownership of their own careers. And so it has a great scope in a country like India, where internet penetration is almost 750 million internet users. And so it also contributes to a better standard of living to the people. So however, the gig economy has been viewed with some apprehensions. So one of the most important of them being the lack of social security for the workers who are working under such platforms. So there is another way of alleged exploitation which is being seen through bait and switch models adopted by the employers. So by bait and switch model, we mean that they often lure the platform workers into their employment. Later on, they retract, and so this can be seen in the recent strike by the Blinkit workers as well. And so another disadvantage can be lack of defined career progression, which in turn increases the pressure. However, sir, we can still look at the silver linings. We have had reports by the Niti Aayog who have been giving various suggestions to make Okay. 1 second. I think my internet connection is weak. ओके थोड़ा सा नेट का यहाँ पे इशू चल रहा है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिसरप्शंस ऑल्सो. बाहर भी थोड़ा वो चल. ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट हैज बीन कवर्ड. एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग? मेघना, राघव? नो सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग. ये जो पार्ट टाइम कल्चर है उसको भी इनकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में. किसको? और साथ में सर पार्ट टाइम कल्चर को, सर पार्ट पार्ट टाइम टाइम कल्चर, यस यस यस, ठीक है. सिंपल टाइमिंग्स गिग की इकोनॉमी. फ्लेक्सिबिलिटी है सर इसमें. हाँ, गिग इकोनॉमी क्या है? आउटसाइड द वो हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थोड़ा सा रहता है, और इंडिपेंडेंट आपको वर्क मिल जाता है, पार्ट टाइम भी मिल जाता है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हैं, उतना ज्यादा पे नहीं करना पड़ता, सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती. ठीक है, दोनों के लिए आपका फायदा हो जाता है. फिक्स सैलरी नहीं है, और आपको बहुत सारे टैलेंट पूल भी आप इसमें काफी हद तक डाइवर्स लेके आ सकते हो सकता है जो चीज यहाँ पे नहीं हो, और इंटरनेट के साथ हमें अलग अलग जगह से मिल सकता है, और कोस्ट इफेक्टिव भी मिलेगा. एक ही काम को करने के लिए, मान लो बिल्कुल ही विसिनिटी में कोई है, वो हो सकता है 10,000 में कर रहा हो, बट कोई थोड़ा दूर है, उसके नीड डिफरेंट है, वो हो सकता है उसी काम को 5,000 में कर दे, तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है. रिमोटली काम कर सकते हैं इंटरनेट के यूज से, तो ये सारे फायदे हो जाएंगे. ठीक है, मेन इश्यूज पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको देखना है, जैसे काम करने के हिसाब से क्या इश्यूज हो सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी तो है, बट एक वर्क लाइफ और प्रोफेशनल और उसका लाइफ का बैलेंस आपका बिगड़ सकता है. अननेसेसरी प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो एम्प्लॉय कैन आस्क यू टू डू एनीथिंग, एनी अमाउंट ऑफ वर्क, और आपको नीड होती है तो आप उसी हिसाब से एक्सप्लॉइट भी किए जा सकते हो. ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बोल सकते हैं. स्ट्रेस और ये सब रहेंगे ही. ठीक है, और एक ये हाँ, यस एक मेघना. पॉइंट और ऐड किया जा सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ मतलब जो गिग वर्कर है, एम्प्लॉय है, सिर्फ उसका नहीं, एम्प्लॉयर का भी हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. बिल्कुल, एग्जिट का दोनों के भी हिसाब स्कोप से. उतना ही रहता है सर. हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो उसके लिए भी ये रहेगा कि भाई मान लो आपने काम दिया, टाइमलाइन दी, आप उस पर डिपेंडेंट भी हो गए, आपने और कहीं काम नहीं दिया, बट उसने काम नहीं किया, वो चला गया एकदम से. आपने 1 महीने का काम दिया था, आप सोच रहे हैं कि भाई काम ठीक चल रहा है, आपने 10 दिन के बाद पूछा तो कोई काम ही नहीं हुआ, वो कह रहा है कि सर कर रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ. तो इस टाइप से भी कुछ हो सकता है, दोनों के पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हैं. ठीक है, एक फैक्ट जो यहाँ पे मेरे पास है, आप बस उसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि मतलब अप्रोक्सीमेटली गिग इकोनॉमी कैन प्रोवाइड 90 मिलियन जॉब्स, और लगभग 1.25% आपका जीडीपी में ऐड कर सकता है, ये इकोनॉमिकल सर्वे ने बताया है. नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई थी, इंडियाज बूमिंग प्लेटफॉर्म एंड गिग इकोनॉमी, उसमें भी वो यही समझ रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और उसमें इंक्रीमेंट हो ही रहा है.
ठीक है, डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग, तो गिग इकोनॉमी की डिमांड भी बढ़ रही है। ओके, वैसे तो पुराना सवाल हो गया है कि पोस्ट कोरोना हम इंडियन इकोनॉमी में क्या रिकवरी हुई, तो उसके रिगार्डिंग बस सिंपली मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी, okay, and what do you think were the 5 major impact of corona pandemic on Indian economy, and how far we were able to come back? One second, एक second, एक second. Okay, नेट चला गया था, अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो माय क्वेश्चन वाज, कोरोना के हिसाब से देख रहे हैं, इट इज अ ब्रॉडर, अगेन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो पॉइंट इज व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी, फर्स्ट यू हैव टू टेल दैट। सेकंड, और अभी अपने आंसर्स को ना ब्रीफ रखेंगे, ब्रीफ मतलब जो इंटरव्यू के हिसाब से आपको आंसर करना है, थिंक एन आंसर, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हम नहीं जाएंगे, मेंस के हिसाब से हम नहीं जाएंगे। हाँ, एक बार एक स्टूडेंट का आंसर आ गया तो अगले स्टूडेंट को हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है? तो पॉइंट, व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी, एंड नंबर 2 क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक आर द 5 मेजर इम्पैक्ट of corona pandemic on Indian economy, and number 3, how we have fought for it or how Indian economy has recovered from corona pandemic। तो उसके रिगार्डिंग भी आप 3-4 पॉइंट्स बताएं। ओके, अप्रोच ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आप एग्जांपल अलग अलग डाइवर्स सेक्टर से लेके ऐड कर सकते हो, ठीक है? हु वांट्स टू स्टार्ट? यस, Uh, okay, sir. I यस would like to राघव। try. Yeah. So K-shaped recovery is a shape of recovery where only लाउड some राघव, sectors लाउड of the लाउड economy. Yes, लाउड। sir. Am I audible now, sir? यस, Yeah. Sir, K-shaped recovery is a shape of recovery in which some sector of the economy have a growth after the pandemic, and some of the sectors remain stagnant. For example, there can be a difference between the formal and the informal economy, where the only the formal sector grew and informal sector remains stagnant. This can be due to many reasons, such as extending government support is easier in the formal sector, whereas it is difficult in the informal sector, and the amount of capital formal sectors can invest into the businesses. Second question about the economic problems which we have faced due to COVID-19 pandemic. Number one would be the most problematic was the decrease in aggregate demand. Second one was the disruptions in supply chain, which has been there. Third one was the problem in mobilization of people along there. And fourth one is the perception about the world and perception on the economy. And fifth one is the not only some countries over the world, everyone was impacted equally because of the COVID-19 pandemic, which is also a grave issue because it not only not only put pressure on the aggregate demand, but also the exports of the country, hitting the country in the two way. Uh, okay. Sir, can you repeat the last question? How India has recovered, how we have performed, yeah, how we have tried to recover from corona pandemic, post pandemic recovery. Yes, sir. Sir, previously there was very apprehensions and some reports were saying that India would have a K-shaped recovery after pandemic, but it has been like proven after some time that we have passed 2 to 3 years after that we had V-shaped recovery, and this has been possible because of the various stimulus packages announced by the government, and uh, every sectors have been have achieved a growth equally after pandemic. Okay,
Can you name some stimulus packages? Can you give some example, one or two? Yes, sir. Sir, first one in the mainly focus was the Atmanirbhar Bharat package, which was announced in the May in 2021, where equal incentives was given for infrastructure, let's say capital expenditure in the in the economy, and secondly, credit link line incentives, which was given to promote micro and medium small enterprise sectors. Okay, MSME sector. ठीक है, Swarnima, very good, Raghav. So by K-shaped recovery, we mean that the graph of economic recovery appears in the form of a K, wherein the upward trend recognizes the sectors which have been receiving a growth, while the other segment represents that some sectors have not grown in par as the other ones. So COVID pandemic has given mixed Can you add some consequences to the Indian. examples, like which sectors were growing and which sectors were not growing properly in the K-shaped? So, for example, in case of the COVID pandemic, sectors like pharmaceuticals had witnessed growth, while the sectors that involve a personal connect, such as tourism, etc., received a setback. So, sir, Okay. in that regard, it can be seen. Sir, the economic impacts have been multifaceted of the pandemic. So we have seen that we now realize the concern of consolidated supply chains now because of disturbances caused by the pandemic. So we also have seen that the agriculture sector of the economy has been resilient because it had been seen that it was growing despite the lockdowns and other physical curbs. So the service sector was impacted due to fall in consumption demand as well as the physical barriers imposed by the governments. So there was a slump in infrastructure activity as well, and there were rising cases of unemployment with increased MGNREGA benefits as well through allocations. So, however, it can be seen that the pandemic was an opportunity in disguise as well for the economy. For example, so we were able to get in significant petroleum reserves, considering the reduction in petroleum prices worldwide. And so the government also has been releasing various stimulus packages on account of reducing demand. And so a reduction in repo rates was also seen during the pandemic to boost the consumption by the economy as a whole. And so now we have seen that we have reverted back to the pre-pandemic levels and our economy is in a good shape. So, sir, we all are hopeful to stand by the global expectations out of Indian economy in the coming times. Very good. You added 3-4 important points and different points. That's nice. Opportunity in disguise, petroleum reserves, repo rate. That's really nice point. थोड़ा सा मतलब जैसे अभी तो ओके वी अंडरस्टैंड, बट मान लो वैसे इतने सारे सवाल एक साथ आने की संभावना कम है. मान लो चैलेंजेस और वैसे भी पूछा जाए ना, तो 3-3 करके उनको कंक्लूड करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना सवाल. ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए मतलब वही है कि सामने वाला भी थोड़ा बीच में इंटरप्ट करेंगे वो फिर. ठीक है, तो अपना टक टक 3 पॉइंट बताए जो भी दिमाग में आ रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे एक बार थोड़ा सा करा स्कैन, 5-6 सेकंड जो आ रहे हैं वो बता. वन, फिर बोलते बोलते अगला आ जाता है. सोचते सोचते ना जब हम बोलने लगते हैं, बोलते बोलते अगला आएगा, फिर वो बोल दिया, फिर वो बोल दिया, तो 90 सेकंड के आसपास आके वी हैव टू स्टॉप. ठीक है, तो उसी में ही मैनेज करना है. थोड़ा सा ज्यादा जा सकते हैं डिपेंडिंग, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लंबा था तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लगेगा. ठीक है, वैभव, you want to add anything extra, Yes, sir, Vaibhav? yes, sir, just one more point. For example, you asked the impact, so we can write down the positive impact. For example, the digital economy got a boost and the Yes. educational technology sector. So Exactly. it was a positive from this particular perspective. That's हाँ, एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सेप्टेंस हम कह सकते हैं. ऑनलाइन लर्निंग हैज इंक्रीज्ड not only at the local level but also internationally. Everybody is connected now, और मीटिंग्स हैं वो भी इस तरीके से होने लगी, तो काफी एक हमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी मिला इस कंटेक्स्ट में. वी कैन टॉक अबाउट इट. ठीक है, यस मेघना. सर इसमें हम रिकवरी में डोमेस्टिक जो अपना कंजप्शन है
उसको भी एक मेन फैक्टर बता सकते हैं, क्योंकि हमारी कंजम्पशन ही इतनी है कि हमें आउटसाइड पे ज्यादा फोकस करना नहीं पड़ता एफडीआई वगैरह। Yes. How much percentage is our consumption of the percentage of GDP? सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब अराउंड 54% है आई गेस सर, बट नॉट श्योर सर। ठीक है. Who has the fair idea? Correct idea? Consumption? Approximately 54 या 60% के आसपास, which I can remember, लगभग इतना है. 60% के आसपास हमारी इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, बाकी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है. तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये इस एक चीज के कारण भी हम थोड़े से रेजिलिएंट रह पाए उस चीज में ना. ठीक है. अब देखो 2-3 एग्जांपल बस आप नोट डाउन कर लो. एक तो पोस्ट कोविड रिकवरी हो, मतलब हम अभी भी टॉप, अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी पे, टॉप 5 में हम आ चुके हैं, वो भी दिखा रहा है. एंड वी आर सून बिकमिंग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑल्सो, मे बी बाई 2025. ठीक है. 2024 2025 में हम बन भी जाएंगे 4 ट्रिलियन. और एक और पॉइंट है, इंडिया टू बिकम 4th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर बाय 2030. मतलब दोबारा से हम टूरिज्म की अगर बात करते हैं तो फिर से वी आर ग्रोइंग. एविएशन में भी हम ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं. वैसे एक दो एग्जांपल बस दिमाग में डालने के लिए. ठीक है. एमएसएमई वाला पॉइंट, आत्मनिर्भर वाले पॉइंट, दे वर आल्सो रियली गुड. चलो इसमें एमएसएमई ही डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर एमएसएमईज एंड व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन in GDP if we talk about percentage GDP production and contribution in terms of exports, how much percentage they are exporting. Also name few schemes of government of India which are helping to grow MSMEs. Yes, who wants to start? बताइए. स्वर्णिमा. So I cannot recall the exact share in the GDP. Approximate share. Just So answer I it know like that if this question has come to you in interview, how will you answer? Just try to answer like. So MSMEs are viewed as small growth engines in the economy, and there is a certain definition laid by the Commerce Ministry, which segregates the sector in micro, small, and medium enterprises. So MSME contributes to about 40% of our total country's exports, and so they give out a significant chunk in the total industrial production as well. So there have been numerous schemes that the government has introduced to protect the well-being of MSMEs. For example, so special support in case of emergency credit line guarantee scheme. So then we have the Prime Minister Mudra Yojana. We have the Champions portal for well-performing MSMEs and adequate digital support. And so Stand Up India for the vulnerable sections to set up MSMEs. ठीक है. स्टैंड अप इंडिया आपने बताया. मुद्रा, then Emergency credit line guarantee scheme. Okay, emergency credit line guarantee fund. Okay, ठीक है. Any more scheme? डाटा में लगभग हमारा ये रहेगा कि अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्शन में हम 30 to 35% आप बोल सकते हैं, और 45 to 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी करता है, बट इसके हिसाब से रखो कि प्रोडक्शन में लगभग इतना रहता है जीडीपी का, एंड एक्सपोर्ट्स में लगभग 45% के आसपास रहता है, 40 to 45%. ठीक है. यहाँ पे अलग अलग डाटाज आ रहे हैं अलग अलग जगह पे. तो 30 याद रखेंगे और 45 याद रखें. नाउ स्कीम्स में एनीबडी वुड लाइक टू ऐड एनी न्यू स्कीम? स्टैंड अप, मुद्रा, emergency, any more scheme which you can remember for MSME? Sir, RBI adding MSME in the priority sector lending area category. Yes, very good. PSL में है, तो this is also a good example. RBI ने इसको ऐड किया है.
And sir, there was an ASEAN portal also for registration of MSME and for their formalization in the economy. What is the name of the portal? ASEAN portal, sir. ASEAN portal, yes. ASEMI. Yes, sir. I don't ASEAN remember हो its गया full form. ठीक है. एक रैम्प स्कीम है, संकल्प है, स्ट्राइव है, रैम्प है. थोड़ा सा उनको भी मतलब दिमाग में रख लेना. एस वाले चलते हैं. ठीक है. स्टार्टअप इंडिया, Yes, sir. स्टार्टअप इंडिया डिपेंडिंग एमएसएमई ऑफ द. फिर एक और भी चीज है, गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड सर्टेन परसेंटेज टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एमएसएमईज, दैट टू वल्नरेबल sir. सेक्शन, माइनॉरिटीज एंड वुमेन के हिसाब से भी. तो उसको आप एज एन एग्जांपल दे सकते हो रेदर देन सेइंग कि कितने परसेंटेज रहेगा, बट यू कैन गिव जस्ट एग्जांपल कि कुछ परसेंटेज लगभग अलग अलग जगह अलग अलग रहता है. 10 to 20% of the procurement is done through MSMEs. That is varying according to the department. ठीक है. Okay. Sir, self-help group also add कर सकते हैं. Like they are promoting Self-help MSME group because of. you can add, but अगर गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में है तो हम सोसाइटी के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं कि थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स MSMEs आर प्रमोटेड. ठीक है. Yes, sir. Okay. ओके. अगला सवाल लेते हैं. ठीक है. Smart city mission, it has been 10 years. So can you tell how smart city mission has performed? Do we really have 100 smart cities in India right now, which we aspire to be having? Yes. Tough question because limited data. State initiative, Dinesh, we will do in one session completely. एक बार current affair होते ही. Tomorrow we will keep a complete session for Haryana. उसमें सारे budget, economical survey, government schemes of Haryana we will. ठीक है. Yes, Swarnima. So the smart city mission was introduced with the view to develop citizen-friendly, state-of-the-art cities in the country. And as a pilot project, 100 cities were selected based on a selection process. Sir, now that 10 years have completed, however, sir, it has been noted that almost none of the cities have stood at par with the targets. So, sir, this is a cause of great learnings for us. So some of the reasons which are identified are lack of proper utilization of the sanctioned funds, and certain issues have also been noted in terms of comprehensive and multi-sectoral approaches which are required in city development, especially in cases where retrofitting is to be done. Because learnings should be taken, and however, certain southern states have performed well. So I don't remember the name, but a smart city in Tamil Nadu is faring better than the others. So we can take lessons from there and develop a positive outlook as to how we can build further on the progress made. Yes, very good. ठीक है. इसमें और कोई anybody wants to add anything? बाकी लोग? सुखप्रीत, शिखा, शबनम, राजेंद्र, मेघना, कुलदीप, विजेंद्र, दिनेश. इसमें बस मैं एक दो फैक्ट ही आप लोगों को नोट डाउन करवाना चाहता हूँ. मान लो इफ क्वेश्चन कम्स, इधर उधर की बातें तो हम कर लेंगे, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. ठीक है. अच्छे से ध्यान देना चाहिए था, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अप्रोक्सीमेटली 7970 यानी लगभग 8000 प्रोजेक्ट थे जो आए थे, और लगभग 1,60,000 करोड़ आप मान 1,60,000, क्योंकि 500 करोड़ के आसपास जैसे कुछ उन्होंने टारगेट रखा था ना, तो उस हिसाब से आते रहे और वो एड ऑन होते रहे हर सिटी के हिसाब से. तो टोटल प्रोजेक्ट्स वर अप्रोक्सीमेटली 8,000 with a total value of 1,60,000.
उस 8,000 में से सरकार ने जो रिपोर्ट किया है वो कहा है कि 6500 प्रोजेक्ट जो कि 1,25,000 करोड़ बनाते हैं, यानी 160 में से 125 हमने कंप्लीट किए हैं। तो नाउ यू हैव अ फेयर डाटा, वन डाटा, जस्ट टू सब्सटेंशिएट योर आंसर कि सर स्मार्ट सिटी में लगभग इतना था, और गवर्नमेंट ने ये बताया कि हम 8,000 में से लगभग 6500 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 170 खर्च करना था, उसमें से 125 हम खर्च कर चुके हैं। बट आउट ऑफ 100 ओनली मदुरई, जो स्वर्णिमा कह रहे थे ना साउथ इंडिया की सिटी है, दैट इज मदुरई। मदुरई हैज कंप्लीटेड ऑल द प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा किसी ने कोई डाटा मतलब कंप्लीशन और किसी का नहीं हो पाया है। बाकी उस लेवल पे हम इसको सक्सेस नहीं बोल सकते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने, जैसे जो विजन दिया गया था बनाने के हिसाब से, वो उतना नहीं हो पाया। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इधर उधर कंप्लीट डेफिनेटली हुए हैं, बट इतना सब कुछ करने के बाद भी 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स भी नहीं हुआ आपके पास। वहां पे भी आपके पास गैप है, सारे प्रोजेक्ट्स भी हमारे कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, और एक टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा था, इस टाइम पीरियड में वी कुड हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। ठीक है, ओके। हरियाणा में कौन कौन सी सिटीज को स्मार्ट सिटी आपको बनाया गया था? तो फरीदाबाद था एक शायद। ओके, फरीदाबाद एंड Sir, I think Karnal was also there. यस, एक करनाल है। ठीक है, फरीदाबाद एंड करनाल, दीज वर द टू सिटीज। ओके, अगला टॉपिक हमारा इसमें है, जो इसमें अभी इतना ही। ठीक है, टूरिज्म वाली जो चीज है वो तो हमने रूरल टूरिज्म में डिस्कस कर ली थी। टूरिज्म इन इंडिया अगर टॉपिक आता है, हाउ यू कैन इम्प्रूव, और ये ठीक है। ओके, एक बहुत मतलब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जस्ट टू सी एंड चेक योर थॉट प्रोसेस, कि लास्ट टाइम हमने रूरल टूरिज्म डिस्कस किया था। अगेन हम अगर टूरिज्म को ही लेके चले, कि ये क्वेश्चन मैंने एक स्टूडेंट से पूछा भी था, हमने उसमें मॉक में पूछा था कि यू आर वर्किंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म विद द हरियाणा गवर्नमेंट, यू हैव टू कम अप विद द, मान लो आपको वेबसाइट बनानी है उसकी, टूरिज्म डिपार्टमेंट की, तो उसमें आप क्या क्या शोकेस करना चाहेंगे? उस वेबसाइट का जो पहला पैराग्राफ है वो आपको बनाना है। अभी मैंने इस क्वेश्चन को रिफ्रेज किया है, वहां पे हमने पॉलिसी मेकिंग पे बातें करी थी। सो यू हैव टू मेक वन पैरा about the tourism in Haryana to attract new visitors. They can be from India, they can be from foreign, it should be in English. ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखना चाहेंगे उसे एक पैराग्राफ में? ठीक है, जैसे एक एक सेंटेंस 5 वर्ड्स एंड अबाउट योरसेल्फ, तो उसी डायरेक्शन में एक पैरा। ठीक है, एंड यू हैव टू राइट मैक्सिमम 5 sentences. These should be your best sentences which you can use. ठीक है, और मतलब जो सबसे, जैसे मान लो मैं आया वेबसाइट पे, मैंने 5 सेंटेंस पढ़े, उन 5 सेंटेंस में क्या ऐसा क्रक्स डालना चाहोगे कि आगे आदमी जो है वो दे शुड फील एंगेज्ड, कि यार मजा आ गया इन 5 वर्ड्स को पढ़ के, एंड आई वांट टू रीड मोर। वी आर नॉट बोदर्ड कि व्हाट विल बी रिटन आफ्टर 5 sentences. यू हैव टू पिक दोज 5 sentences जो आदमी फर्स्ट मिनट में पढ़ेगा। सो टेक योर टाइम, मेक, और जितना जल्दी जो बनाएगा तो उतना ही अच्छा है। थिंक। मेघना आंसर करना चाहते हैं? Yes, sir. बताओ। Don't miss heaven on earth. आगे। सर 5 वर्ड में बोला था आपने। नहीं नहीं, मैंने कहा था, अब तुम Oh, कंफ्यूज हो sorry, गए। I मैंने कहा था 5 misunderstood, sir. सेंटेंस, आई नीड 5 सेंटेंस। Okay, ठीक है, I need to reframe, sir. So, can I speak? यस स्वर्णिमा। So we can start by saying that welcome to Haryana, regarded as the abode of gods. We welcome you to the land of Gita. We welcome you to the land of Mahabharata. We welcome you to a land where
दूध दही का खाना is one of the characteristic feature of the culture of the state. Sir, come visit us and have a journey in the lap of nature through rural tourism, through agro-tourism, and we are a land where the farmer considers the land not just a means of production, rather mother earth, and and nurtures it through all means possible. We also have great biodiversity in the state. We have great national parks, Ramsar wetlands. 5 ही The सेंटेंस में state ना has. So yeah, अभी पूरा पैरा नहीं लिखेंगे, 5 सेंटेंस ही बनाएंगे. Okay, anybody else? Good try, स्वर्णिमा. काफी फास्ट आंसर किया, काफी चीजें इंक्लूड करी. Yes, think creative. Raghav. Yes, sir. Haryana, the abode of code, the land of code, where you have it all. Either you want to see the rural economy or the urban centers near the Gurgaon. Either you want to experience in the lap of nature or you want to enjoy the high-rise building. We have it all. If you want to enjoy the biodiversity, enjoy the behavior of people, the welcoming nature of the society, we have it all. Come visit us, enjoy the enjoy various tourism places. It's nice. Yes, I really liked your "we have it all." So this can be the tagline. We have it all. Okay. ठीक है. अतिथि देवो भव, दूध दही का खाना, ऐसा हमारा प्रदेश हरियाणा. Covers divergent sites from rural tourism to aesthetic to spiritual. We ensure safety and security of all the अतिथि. 3 पॉइंट दिया है राजेंद्र ने. Take your time. Time is not an issue, but the quality should be top notch. मैं भी ट्राई करता हूँ. सर इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम्म. जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज में हम टैक्सेशन के सोर्सेज कैसे बढ़ा सकते हैं या क्या इनोवेटिव हो सकता है, आप क्या करेंगे? हाँ. ओके. सेकंड सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया. चलो, अगली बार जब हम मीटिंग करके एंड करें ना, तो एक जना मुझे याद दिला देना. मुझे ध्यान नहीं रहा. आई जस्ट स्टार्टेड इट. चलो कोई बात नहीं, अभी तो काफी डिस्कशन तो हो ही चुका है. यस, क्या कह रहे थे अतुल? सर ये कह रहा था कि जैसे अर्बन लोकल बॉडीज का जब भी बात आती है तो यूजुअली क्वेश्चन ये उठता है कि हम उसके रिसोर्सेज कैसे बढ़ा सकते हैं यस, या फिर उसके क्या बारे में टैक्सेशन बताओ. के उसके अंदर क्या चलो पहले पैरामीटर्स इसको हैं या डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट लेट अस डिस्कस एयर पोल्यूशन. हाउ हाँ सर. कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन सिटीज? गिव मी 3 concrete point, 3 to 4. ज्यादा भी दे सकते हो या तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए. कौन स्टार्ट करना चाहेगा? हु वांट्स टू स्टार्ट? थिंक, पार्टिसिपेट. Sir, first reason could be the major air, the vehicles. The vehicular pollution is the major contributor to the pollution. And so, sir, so we can, sir, work towards the checking of and monitoring of the vehicles which are very old, like 10-year and 15-year, for the scrapping of those vehicles. Example According to recently brought. sir, yeah, sir, the vehicle scrapping policy was brought by the government. So we
can try to implement those regulations. Second, sir, for the air pollution, there is another issue of parali burning, which has been a long been issue. Then we can also work towards like the government is already giving incentives, but still the many cases of parali burning are coming up. So what we can find is to provide technological solutions like the decomposer, the organic decomposer, which was developed by the PUSA. So we can apply and educate the farmers and create a campaign, awareness campaign among the farmers for that. Okay. And Third, sir, third could be this, the pollution due to the fertilizers, like the excessive use of fertilizer also increases the some particles in the air, and which is also creating pollution. So we can promote nano urea and liquid ureas for that case. okay, fertilizers. Yes, sir. Even biofertilizers can also be used. Air pollution में Sir, air pollution mein, it is also seen like biofertilizer. These fertilizers are in the powder form, so they also create aerosols. okay, in that sense you want to say, but majority Yes. if we talk about soil pollution तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है? Yes, sir. Okay, air pollution में anybody wants to add anything extra over here? There are many examples. The compliance of the emission norms by thermal power plants. Yes, this is good example. Anything else? And so one more is that it is often seen that the government response to this issue has often been triggered only when the problem arrives. Yes. So a year-round approach can be followed. So we can encourage the concept of green buildings and install proper infrastructure beforehand itself to curb. And so technologies like cloud seeding, etc., can also be deployed in extreme circumstances. Right. Very good. Anything else? सर राजेंद्र सर एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। environment Yes. friendly energy such as moving एक to मिनट hydrogen राजेंद्र को कर लें तो फिर आप कर and लें। Yes. sir alternate energy source such as hydrogen Hmm. and R&D in secondary sectors such as fuel gas desulfurization, electrostatic precipitator, cycle lane Okay. development or enhancement such as Chandigarh example, health and wealth maintain, Hmm. and these are three extra points. Yes. Right. Very good. Anything extra, Monica? You want to add something different from सर these मुझे points? जी सर मुझे जींद का एग्जांपल ऐड करना था। ऑल्दो वहां पे कोई मेजर इंडस्ट्रीज नहीं है तो भी AQI 300 से ज्यादा है। उसका रीजन ये है सर, बहुत अनरेगुलेटेड और इनफॉर्मल छोटी छोटी इंडस्ट्री, टायर जलाने की, लेदर की, जो रेगुलेशन के अंडर नहीं है और वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। Yes. अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन भी आप ऐड कर सकते हो। और सुप्रीत ने मैसेज किया है ये पॉइंट, ये देखो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी खुद देखो ना। आपने GRAP है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसके बारे में हम बता सकते हैं। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ऑड इवन स्कीम, पॉल्यूशन के लिए हम जब बात करते हैं। टेम्परेरी मेजर्स तो आप इनको 2-3 में डिवाइड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म मेजर्स, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, मियावाकी टेक्निक, तो इसमें क्या है कि आप अलग अलग चीजों को लिंक करोगे जो अलग अलग जगह पड़ी है 4-5 एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आप अर्बन फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में मियावाकी ला सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल GRAP, NGT, फाइन्स आप लगा सकते हैं। कोई इस टाइप से पाया जाता है कि भाई उसने रूल रेगुलेशन नॉर्म्स का फॉलो नहीं किया, पनिशमेंट भी हो सकती है। बहुत सारे जैसे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, NGOs भी आ रहे हैं, उनके साथ मिलके हम क्लीनलीनेस या फिर इसके लिए भी काम कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए और बढ़ावा देने के लिए। ग्रीन एरियाज बनाने के लिए भी बात कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट टाइप्स, ठीक है। और जैसे दिल्ली में यूज किए गए थे स्मोक टावर्स वगैरह, या फिर क्लाउड सीडिंग वाला अच्छा था, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में वो भी हो सकता है। चाइना भी टावर्स, स्मोक टावर्स आपका लगा रही है काफी बड़े बड़े। तो 4-5 पॉइंट अपने दिमाग में रखना प्रायोरिटी के हिसाब से, जो भी आपको लगता है, ठीक है। सर अभी वैसे काफी ई व्हीकल्स का काफी अडॉप्शन बढ़ गया है सर, मैंने देखा है हमारे भिवानी में ही
पहले बहुत ज्यादा पेट्रोल व्हीकल्स और ये जो होते थे, इवन एक्टिवा भी अब रिप्लेस होती जा रही है, ई व्हीकल्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं सर रोड्स पे, हाँ, ई क्योंकि व्हीकल्स आ रहे सरकार हैं, भी सेम इंसेंटिव दे रही है। प्रोडक्शन तो लिंक जितना ज्यादा, इंसेंटिव्स। हाँ सर, जितना ज्यादा इनका एडॉप्शन बढ़ेगा उतना ही वो सोर्स पे अटैक हो जाएगा कि हाँ, वो व्हीकल्स ही अगर रोड पे कम हो गए तो ऑटोमेटिकली व्हीकुलर पोल्यूशन ही कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, एटलीस्ट लोकल लेवल पे वी विल बी एबल टू एड्रेस दिस। ठीक, हाँ सर। वेरी गुड। स्टबल बर्निंग हो गया, प्लांट, ठीक है, लगभग सारी चीजें हो गई है ना शबनम, वेरी गुड। अच्छा, अर्बन क्राइम, डू यू सी और डू यू थिंक वुमेन आर नॉट सेफ इन Haryana's urban cities? They are not able to walk outside their houses after 8 o'clock alone. How do you see this situation? What are the reasons behind it, and what can be the possible solutions? How can we make our public places safer for our women? So it is related to both women safety, urban crimes. Why spaces are not safe or crime is rising, and second, how can we solve? Yes. Who wants to start? Oh, yes, sir, I can start. Yes, Raghav. Sir, the women's safety and urban crime ratio has mainly prompted due to lack of employment opportunities proper, which indulge the youth into such crimes. And secondly, uh, not very much strict implementation of laws and laws and rules has been seen. Like there has been corruptions in the administration uh, in the on-field corruptions in the police administration. This is due to corruption has been prevalent in the country because the criminals get an impromptu immunity due to this if they have the money, power, or the base. Now, the probable solution could be for this will be like uh, having greater employment opportunities, planning urban areas regarding uh, planning urban areas, and thirdly would be strict implementation of laws and policies. Okay, good. But जो करप्शन को आप थोड़ा सा फार स्ट्रेच कर गए, पुलिस से लेके फिर मनी मसल पावर, और वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। ठीक है, वो मतलब हम क्रिमिनल, हाँ, कोलिजन के कंटेक्स्ट में बोल सकते हो कि भाई क्राइम में कहीं ना कहीं देयर इज अ कोलिजन, तो उसको लास्ट में रखो तो ज्यादा ठीक है ना। Okay, sir. आपने दो ही Okay, पॉइंट sir. बोले, दो में एक काफी प्रोमिनेंट पॉइंट वो डाल दिया, उसके अलावा भी हम और बातें डाल सकते हैं फॉर क्राइम। यस, कौन ऐड करना चाहेंगे? सर इसके लिए हम पुलिस की पेट्रोलिंग इंक्रीज कर सकते हैं सर, जो नाइट ड्यूटी में पुलिस की पहले तो रीजन पेट्रोलिंग। बताओ, रीजन फर्स्ट, रीजन आते हैं तो सॉल्यूशन तो अपने आप आ जाएंगे। सर फर्स्ट सर रीजन इज ड्रग अब्यूज। सर अगर वुमेन के साथ इतने क्राइम होते हैं, फर्स्ट दे आर फिजिकली वीक सर, हमें उनको सर ट्रेन करना, जैसे हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस अकेडमी है सर, जहाँ पे वुमेन को ट्रेनिंग दी जाती है सर सेल्फ डिफेंस के लिए सर। ठीक है, गुड। नंबर 2। सेकंड सर, हाँ जी सर, पनिशमेंट है ना सर, वो इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि सर ये द क्रिमिनल बिफोर कमिटिंग ए क्राइम सर दे शुड थिंक ट्वाइस। पनिशमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है? और अच्छा ये बताओ, कौन कौन सी पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट करना चाहोगे और किस किस क्राइम के लिए? Okay, I think network issue. Atul? Sir, I think one solution can Yes, also Vaibhav. be, sir, one solution can also be the gender sensitivity and training in the administration, as well as among the
women themselves about their rights. So we have to educate them about their rights. So for example, they have specific rights, the POSH Act, etc. We can educate them about that. यस, गुड एग्जाम्पल। तो रीजन में भी इसी को ले आओ, जैसे लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी, पैट्रियार्कल माइंडसेट, तो उससे कहीं ना कहीं क्राइम करते हुए सोचता नहीं है आदमी, दे थिंक दैट दे आर सेकेंडरी सिटीजन्स एंड दे हैव टू बी, तो वो एक माइंडसेट में कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ईव टीजिंग के केसेस, वुमेन्स क्राइम्स आपके कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेकंड, जैसे सर इस पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट को या ऐसे फ्रेज कर सकते हैं कि जब भी कैसे, विमेन की पार्टिसिपेशन पब्लिक स्फेयर में इंक्रीज होती है तो पैट्रियार्की को हाँ, दिस इज योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल टॉकिंग। तो ऐसा होता है, कह सकते हैं कि मतलब द वायलेंस इंक्रीज इन, अगेंस्ट वुमेन बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ये साइकिल सा रहता है कि मान लो हम एक चीज को सोल्व करना चाह रहे हैं, बट जो कोर वैल्यूज हैं उन पर अटैक होता है, तो दे जस्ट वांट टू रीइंस्टेट देम थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्योंकि अब मान लो इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा, ठीक है, तो अब वो वैसे तो उनको कुछ नहीं कर सकते, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली पब्लिक स्पेसेस में बढ़ जाती हैं। ठीक है, इवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेप इट इज सेड दैट, मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम फॉर्म में जाके, कि पेट्रियार्की is manifesting in terms of rape also, कि you have no control now in the homes, और ये तो फिर the cases are rising in form of crimes। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, बट उतना एक्सट्रीम के बजाय आप जीएस के परस्पेक्टिव से रखो ना, तो ज्यादा ठीक है। सिंपल सा कि नंबर वन, यू कैन से पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्राइम रेट और वो आपके बढ़ जाते हैं। नंबर टू, जेंडर सेंसिटिविटी की हम बात कर सकते हैं, इट इज लैकिंग, इसमें बात कर सकते हो। नंबर थ्री, इसी में ही पेट्रियार्कल माइंडसेट को आप ला सकते हैं। और नंबर थ्री पे अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग अब्यूज को भी ला सकते हैं, कि उसकी वजह से भी काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो वुमेन क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी जरूर रखना है 1 और 2 में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अगर सर वुमेन सर स्पेसिफिक है। सर सर जो हमारा आज का ट्रेडिशनल सर आज का जो एक मीडिया है पॉइंट उसको डाल सकते हैं, उन्होंने भी वुमेन को एज अ थिंग के रूप में प्रेडिक्ट कर रहा है सर, वो अपनी, जैसे सर एनिमल मूवी है, हाँ वो बिल्कुल सर वो बिल्कुल वुमेन्स को एज अ आइटम प्रोड्यूस कर रहा है सर, ना कि वो एक एज अ ह्यूमन बीइंग सर। तो बिल्कुल। ये हमारा जो सिनेमा, मीडिया है, यू कैन गिव दिस सिनेमा है सर, एग्जांपल, वो मैनी youth gets inspired, you see shorts, reels in which sometimes they are portrayed in demeaning manner, तो उससे भी वही चलता है, छोटी छोटी शॉर्ट्स वैसे बनाई जाती है, या मूवीज के कंटेक्स्ट में भी आप बोल सकते हो, उससे काफी व्यू पॉइंट गड़बड़ होते हैं। ठीक है, जैसे पहले ऐसा बोला जाए, जैसे सास बहू वाले सीरियल आते थे, तो उसमें जैसे दिखाया जाता था, तो वैसे ही ट्रीटमेंट भी फिर करने लग गए। ठीक है, वीक भी समझे जाते थे, तो ये सारा रहेगा। समझ में आया? 2-3 प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। वुमेन सेंसिटिविटी पहले आना चाहिए। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयमेंट और इनको भी ला सकते हैं, पॉपुलेशन कंजेशन क्रिमिनल एक्टिविटीज से वो भी लिंक्ड है। ठीक है, और बाद में फिर एटीट्यूड बिहेवियर में भाई अर्बन एरियाज में एनोनिमिटी एक रीजन सर क्राइम एनोनिमिटी, बढ़ने दिस का। इज यस वेरी गुड, एनोनिमिटी आल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन वी कैन से इन अर्बन एरियाज। ठीक है, कि क्राइम करे भाग गए पता नहीं चला, इट्स इजी टू हाइड, तो इसीलिए उतना सॉल्व नहीं हो पाता है। बट छोटे सिटीज में पता भी चल जाएगा कि भाई किसने करा के, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट देखो फीमेल के केस में क्या होता है, एक और चीज भी रहती है कि जो वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उसमें मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, स्पेशली इन द केसेस लाइक रेप केसेस, इट इज द पर्सन हु नोज देम, तो वो फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, तो एनोनिमिटी का वो वाला उसमें नहीं आएगा। बट यस, छोटे मोटे क्राइम्स के लिए डेफिनेटली एनोनिमिटी प्लेज अ बिगर रोल, जैसे कि चेन स्नैचिंग हो गया, ठीक है, या वैसे छेड़ना हो गया, ईव टीजिंग हो गया, इनमें एनोनिमिटी काम दे देता है।
but for the serious crimes, it is not such a prevalent thing. देखो अगला इशू जो आ रहा है वो आ रहा है अडल्ट्री. इसी को ले लेते हैं. अडल्ट्री. ओके. Recently, Supreme Court has decriminalized adultery. Okay. What are your views on this? Was it a decision in the right direction, or you think it should not have been done this way and it should have remained a criminal activity? You have to give good reasons, at least explaining it कि भाई क्यों आप कहना चाह रहे हो. Yes or no. पहले तो एक स्टैंड लो. टेक अ स्टैंड कि व्हाट डू यू थिंक, अडल्ट्री को क्रिमिनल बनाना ठीक था या अभी हटा दिया है तब ठीक है, और है तो क्यों. 3 रीजन. सोचो. Sir, I would go with the decriminalization of adultery. Okay. Because Why? sir, in adultery, the law was of British era. It imposed the British colonial morality, like the women should ask before having relation with another man, should ask with the husband. So it was clearly defining the second-class citizenship status of the women, and it was interfering into the private matter of a family. But but now, sir, after 75 years of independence, we can see that the modes of the society have been changing, and there is greater demand for equality. So, in the favor of women empowerment, we can at least have uh, a symbol of equality. Like both should not ask each other for adultery, and however, adultery has been considered as a ground for divorce. That has been at least kept by the Supreme Court. So it is still a ground for divorce, but it is not a crime anymore. It is only a civil offense. So that could be considered as a balancing point that has been made by the Supreme Court. Okay. Anybody else wants to counter, Atul? Come on. Adultery, what do you think? Everyone should have a view with the reason. Raghav, what do you think? Start with. So, sir, I think decriminalizing is the best option. What the law court has also taken a stand upon it, because there are certain issues, because it puts the woman on the secondary part, and secondly, though some religions and other views have taken it as a Did serious you take a crimes. view? You support it or not? Supreme Court is. Sir, I supported the Supreme Court judgment. You support? Yes, sir, I support it. Okay, you support it. Okay, tell. Yes, sir. Sir, I should start from the start or continue this? Yeah, continue. Okay, sir. Sir, I was saying, though some religion institutions have was against adultery, that it is a serious crime and it should not be there, and it is a problematic thing in a marriage, and it can taking that into ground, the Supreme Court has kept it as a civil offense and making it as a ground for divorce. That's it, sir. Okay. कोई और ऐड करना चाहेगा कुछ? Sir, adultery is not gender neutral, sir. I think the previous law. Previous law, yes. How? Sir, it concentrated more on woman cheating the husband rather than cheating husband on woman. Only single point of view is taken.
it was More, taken into more, consideration what? more deviation. Sir, you said the adultery. I was in favor of Supreme Court because the law was more is not gender neutral. It deviates towards women cheating on men rather than men cheating on women. Okay. मोनिका, सर एक पॉइंट ये हो सकता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग इलीगल एंड बीइंग इमोरल। वो Yes. चीज इमोरल हो सकती है बट जरूरी नहीं कि वो इलीगल भी हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के केस में भी यही जजमेंट दी है। ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छा है। देखो अडल्ट्री में पहले क्या होता था, मैं सिंपल सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मेल मेल पे ही केस फाइल कर सकता था अगर उसकी वाइफ के उसके साथ इलीगल रिलेशन थे, तो मतलब फीमेल तो केस फाइल नहीं कर सकती। तो एक तो फीमेल को कोई फायदा नहीं कि भाई मान लो उसका हस्बैंड कहीं चीट कर रहा है, तो जो जिसके साथ चीट कर रहा है ना, उसका हस्बैंड उस पर्टिकुलर आदमी पे केस फाइल कर सकता है। तो इट वाज समथिंग लाइक दिस कि मान लीजिए ए और बी की शादी हो रखी है और सी और डी की हो रखी है। ए एंड सी आर मेल, बी एंड डी आर फीमेल। तो ए और बी की शादी है, ए इज हैविंग इलीगल रिलेशन विद डी, ठीक है। तो बी नहीं कर सकती कुछ भी, बी केस भी फाइल नहीं कर सकती। हाँ अब देखो, ए की रिलेशन है डी के साथ इलीगल, सी फाइल कर सकता है, बट सी किस पे कर सकता है? डी पे नहीं कर सकता। अपनी वाइफ पे केस फाइल नहीं कर सकता, किस पे कर सकता है? ए पे कर सकता है, ठीक है। तो मेल कुड ओनली फाइल केस अगेंस्ट मेल, नॉट द वाइफ। तो वाइफ के अगेंस्ट भी केस नहीं जा सकता और वाइफ केस भी फाइल नहीं कर पा रही थी। तो दोनों ही तरीके से ये नुकसानदेह था, दोनों के लिए ही। तो अब इसको हटा दिया गया है। एंड अडल्ट्री एक अब सिविल क्राइम है कि इट कैन बी अ डाइवोर्स फॉर द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। और बाकी आपका जो व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्रिमिनल, आप एक व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी बना के रख सकते थे, बट वी कुड हैव मेड इट जेंडर न्यूट्रल कि कोई भी स्पाउस किसी भी स्पाउस पे केस फाइल कर सके। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। बट आपका जो भी व्यू पॉइंट है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आई बिलीव सिविल क्राइम है तो ठीक है, क्योंकि दीज आर द इश्यूज व्हिच आर मोर रिलेटेड विद individual sexual preferences or sexual autonomy, bodily autonomy, so it comes under right to privacy also, और वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी तो क्यों ही बनाए इसको, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, चीट कर दिया है तो यू कैन लीव अपार्ट, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। समझ में आया? बट इफ somebody wants to take a view कि जी हम तो क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, तो देन यू शुड गो फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाइफ चाहे तो भी केस फाइल ना कर पाए और वाइफ पे भी केस ना फाइल हो, ठीक है। दोनों तरफ मेल ही मेल फंस गए। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो अगला देख लेते हैं। बाकी देखो, आप लोगों के दिमाग में अगर कोई भी टॉपिक आता है तो यू कैन जस्ट सेव द टॉपिक, वी विल डिस्कस इट रैंडमली भी। हमें तो टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आपके डाउट्स में भी हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ा था, सर ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, तो वी विल डिस्कस दैट। बाकी जो यहाँ से सर क्रिमिनल लॉज का भी देखते हैं हम लोग, जो 3 न्यू लॉज आए हैं। न्याय संहिता वाले। यस यस सर। सर। ओके सर एक पॉइंट मैं भी सर बोलना चाहूंगा। जो टॉपिक में सर हम एक तो ना प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स में भी देखने को मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके परफॉर्मेंस को जरूर पूछते हैं कि वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट और दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो भी ले सकते हैं, जैसे सर मिड डे मील या मनरेगा या फिर आयुष्मान भारत, ये मेन मेन जो स्कीम्स हैं सर, या हरियाणा की चिरायु योजना वगैरह, इनको भी सर ले सकते हैं। हाँ, तो व्हाट यू इनका कैन डू, तो परफॉर्मेंस यू मेक अ लिस्ट ऑफ द स्कीम्स, ठीक है। एक बार उनको फिर अपन एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे कि भाई इन में क्या क्या रहेगा। मोटा मोटा तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं कि किसकी, जैसे अपन ने स्वच्छ भारत मिशन का डिस्कस किया, सॉरी हाँ सर। स्मार्ट सिटी देखा, ठीक है। अब देखो स्वच्छ भारत पे यू कैन से कितना भाई 100% ODF हो गया है उस हिसाब से, और हर एक में आपको उतना डाटा नहीं मिलेगा।
और उसमें कितने हद तक जाना भी थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा इसको देख लेंगे। गवर्नमेंट स्कीम वाला ठीक है, न्याय संहिता ठीक है। राजेंद्र, यस। सर हम इलेक्शन के बारे में कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इमेज इरोड हुई थी इस इलेक्शन से पहले, हम्म और एक सर गवर्नर के रोल को जिसके रिगार्डिंग काफी न्यूज आई सर, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, जो उन्होंने बिल्स को रोका है सर अंडर आर्टिकल 202, अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करते हुए, प्रेसिडेंट को रेफर करते हुए बिल्स को सर, और इलेक्शन कमीशन पे और उसकी इलेक्शन ईवीएम मशीन पे सर, क्योंकि इलेक्शन के बाद वो कुछ नोशन थोड़ा सा डाइल्यूट होता लग रहा है। ओके, इसमें देखो पहले चलो, सर क्लेम था कि भी इलेक्शन कमीशन यहाँ बार के वो कर रहा है तो एक साइड ले रहा है, बट अब रिजल्ट के बाद वो थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है सर। मैं सोच ये वाले टॉपिक भी इंक्लूड होने चाहिए सर। ठीक है। सुखप्रीत, सर यस। हम सर जितनी भी बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनकी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन उठ रहा है उनके लिए सर एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं कि वो सबके लिए फिट हो जाए, क्योंकि ईडी भी न्यूज में है, गवर्नर का ऑफिस भी न्यूज में है, तो एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए, वो सब पे थोड़ा फिट हो जाए अगर तो किसी को भी वो ऐसा क्वेश्चन कर कर रहा लेते हैं, मैं जो अपना ग्रुप है उसमें विल क्रिएट ए कमेंट सेक्शन टाइप ऑफ थिंग, या फिर एक वर्ड फाइल टाइप, कि जिसके जो टॉपिक्स हैं जिसके दिमाग में जो आ रहे हैं कि वी शुड डिस्कस, तो हमारे पास एक लिस्ट हो जाएगी। तो उसको फिर हम प्रायोरिटी बेसिस पे ले लेंगे, क्योंकि वो सबके डिफिकल्ट एरियाज होंगे जिनको आप अभी तक नहीं कर पाए हैं या करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमें जनरलाइज डिस्कशन की बजाय बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएगा। एक बार वो लिस्ट तैयार हो जाएगी और हरियाणा को अपन ले लेंगे, हरियाणा सारा ले लेंगे, और करंट अफेयर में वो उन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली ले लेंगे, और उसमें फिर सर कुछ अपने रिलेटेड टॉपिक्स भी कर सकते हैं, क्या, लेटेस्ट जो चल रहा है। सर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो लेटेस्ट चल रहा है थोड़ा उस पर भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। हाँ, उनके भी टॉपिक्स ले लेंगे, चाहे ईरान है, इजराइल है, या नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके टॉपिक्स को ले लेंगे मोटा मोटा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर, हरियाणा गवर्नमेंट पे सर जो डेट टू जीडीपी रेशियो है सर वो इंक्रीज हो रहा है, अगर इसमें हम ये बोलते हैं कि सरकार का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सर, हाँ, तो फिर सर वो उस पे काउंटर कर किया सर, उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से फिर कट करना चाहिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सर, तो फिर जो पेंशन स्कीम है सर, जो वेरियस स्कीम्स पे एक्सपेंडिचर कम करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, फिर तो वो कम करना पड़ेगा सर। तो फिर सर उन्होंने कहा कि अभी तो जरूरत है हमें स्कीम करने की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर आप बोल रहे हो कम करना चाहिए, फिर सर इसको कैसे काउंटर करें सर? वो तो ऐसे ही काउंटर करते रहेंगे, उनका काम ही काउंटर करना है। आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी है। देखो, नीड बेस रहेगा कि भाई Yes, sir. हमें कौन कौन सी सब्सिडीज की नीड है, वी हैव टू रैशनलाइज दैट। और डेट इज टू जीडीपी रेशियो, इवन दो बोला गया है कि भाई 20% होना चाहिए, हरियाणा का आई थिंक 27 या 29% के आसपास है ना, कितना है? 26 है सर। 26 है। तो उतना ज्यादा भी नहीं है, और मान लो अगर आप उस तरीके से इसको कम भी करना चाहते हो तो स्कीम्स के हिसाब से तो देखना पड़ेगा। मान लो कि भाई ओल्ड एज है, उनको तो हमें पेंशन देनी पड़ेगी, डिसेबल्ड है उनको हमें पेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नो उनमें तो सर, लिमिट 33% है, डेट टू 33। जीडीपी रेशो की लिमिट 33% है। यस सर, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बजट दिया था ना उसमें इसको पॉजिटिव पॉइंट काउंट किया था कि हमारा तो 26% है और लिमिट 33% की है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, बट एफआरबीएम में जैसे 60% का जो रहता था वो, जैसे 60% टोटल होना चाहिए, जिसमें 40% शुड बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% सर ये शुड बी डाटा ऑफ मैंने बजट से ऑल द स्टेट। उठाया है। तो वो स्टेट स्पेसिफिक होगा उसमें, आई थिंक जो है ना। हाँ, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 60% ऑल ओवर इंडिया है, जो इंडिया का डेट इज टू जीडीपी होना चाहिए वो है 60%, जिसमें सेंटर का हो सकता है 40 और सारे स्टेट्स के मिला के हो सकता है 20%। बट स्टेट अपने स्पेसिफिक टारगेट रख सकते हैं, जैसे मोनिका कह रही है, और उसमें हरियाणा का 33%, तो ये 26%। इस तरीके से हम इसको सर ले इसके सकते अंदर फिस्कल डेफिसिट भी कोट कर सकते हैं। हरियाणा का फिस्कल डेफिसिट इज कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग, लाइक 2.8% आ गया अब, एफआरबीएम की लिमिट से 3.5% से काफी डाउन। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। सर हाँ, अगर यस इसको कम राजू। करना हो सर, डेट टू जीडीपी रेशियो को इसको कैसे कम कर सकते हैं? उधर 2-3 पॉइंट सर कम करने के लिए। देखो,
डेट है ये दो, डेट इज टू जीडीपी। आप एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, यस सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, तो उससे क्या है कि इंडस्ट्रीज बनेंगी, जॉब्स बनेंगी, तो आपके पास टैक्स रेवेन्यूज आएंगे, तो आपको यस डेट की सर। कम जरूरत पड़ेगी। आप समझ रहे हो डेट क्यों लेके आनी पड़ती है? डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट जो है, उसको अपन वो करने के लिए डेट लेके आते हैं। तो अगर आपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टैक्स वाले बढ़ाए, जो कि आपको देने ही नहीं है वापस, या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए सरकार नॉर्मली कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन पे भी जा रही है, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन पे जा रही है, तो धीरे धीरे सरकार ये भी कर रही है, तो उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर भी कम हो रहा सर है। सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सोशल सेक्टर को डाल के सोशल सेक्टर पे एक्सपेंडिचर कम किया जा सकता है सर। बट उसका दैट इज टू जीडीपी से कोई लिंक नहीं है, सीएसआर इज एंटायरली एक प्राइवेट सेक्टर की चीज रहेगी। नहीं सर, बट तो वो हमारा तो जो वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो कम हो जाएगा ना सर, जो सोशल सिक्योरिटीज पे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं सर। अच्छा, हाँ ये हम कर सकते हो, बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए एक फंड तो बनाया जैसे जा सकता है अडोप्ट सेपरेटली। हेरिटेज है, हेरिटेज को हम उसमें डाल रहे हैं सर, इसी तरह सोशल हाँ, सेक्टर में और ज्यादा इंटीग्रेशन हो। ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। आप एक सेपरेट फंड सा बना के सीएसआर का फंड प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि वो सोशल के लिए ही हमने किया है, हेल्थ एजुकेशन और ये सब, तो क्यों ना हम उसको पेंशन के लिए भी यूज कर लें। बट वहां पे कोई काउंटर आ भी सर सकता है। पेंशन की जगह एजुकेशन में यूज कर सकते हैं सर, वो तो कर ही रहे हैं। और भी सोशल स्कीम्स हैं। जी सर, मतलब उसका हेल्थ, व्यू जो ब्रॉड कर सकते हैं, और भी हेल्थ में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो हमारा रेवेन्यू पीपी, एक्सपेंडिचर घटना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, पीपीपी की इन्वॉल्वमेंट करके कुछ एक स्पेशल प्लान भी बनाया जा सकता है, और इसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे एरिया होते हैं, प्लानिंग और बेटर करी जा सकती है, ऐसे एरिया जहाँ पे उन्होंने सीएसआर एक्टिविटीज करी बट वहां पे नीड ही नहीं थी, पैसा भी खर्च हो गया, बट जहाँ नीड थी वहां पे सीएसआर एक्टिविटी होती तो सरकार का पैसा बच जाता है ना, तो उस तरीके से करा जाता। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जो हरियाणा का सर फॉरेस्ट कवर है वो इंडिया में सबसे कम है सर 3.62%। सर जिस किस किन रीजन की वजह से सबसे कम हो गया सर? सभी स्टेट से कम है सर हमारा फॉरेस्ट कवर तो। आप बताओ। नहीं नहीं 6.7% है, 3.26 नहीं है। नहीं सर, हाँ 3.62 ही है सर। अभी मैंने 3-4 जगह चेक किया सर। हाँ, वो 3.69 और 6.7, वो दो अलग अलग, फॉरेस्ट कवर और ट्री एरिया, ट्री कवर वो मिला के 6 के आसपास बनता है। एक्चुअल जो फॉरेस्ट एरिया है आई थिंक वो उतना ही है अपना। इसमें दो अलग थ्री अलग चीजें पॉइंट चलती हैं, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो सर ये यस कम सर, किस इसके वजह अंदर से यही है है? सर। फॉरेस्ट वाला तो अपना सर थ्री जैसे पॉइंट समथिंग है, 3.69 या 3 पॉइंट यस सर। समथिंग। और ट्री कवर जो है ना, पूरा फॉरेस्ट और ट्री मिला के, वो थोड़ा सा ज्यादा है, 6 के आसपास, बट हमें फॉरेस्ट एरिया ही बढ़ाना है। बताओ क्या कारण है कम होने के पीछे? सर इसका एक तो एग्रीकल्चर ही है सर, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा कल्टीवेशन एरिया बढ़ गया सर। और रीजन सर हम्म, पॉपुलेशन को बोल सकते हैं इसमें सर, कि पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा बढ़ गया हमारे। अर्बनाइजेशन, यस यू कैन से। एग्रीकल्चर हो हिस्टोरिकल गया, रीजंस भी है सर कि पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन हो गया, तो आसपास के कटे, जब एक्सपैंड हो रहे थे अर्बन एरियाज तब कटे, इंडस्ट्रीज आपने लगाई तब आपको हो सकता है कि फॉरेस्ट काटने पड़े। और राघव क्या कह रहे थे? सर हिस्टोरिकल रीजन सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था एग्रीकल्चर पे, सबसे पहले यही ग्रोथ हुई थी। हाँ, एग्रीकल्चर से लिंक कर सकते हो, बट स्पेसिफिक ही रखो। आईवीसी वाला पॉइंट मतलब वैसे डायरेक्टली बोलने की आवश्यकता नहीं है, कि सिंपल की एग्रीकल्चरल लैंड रही है, तो अगर कहना भी है कि सर हिस्टोरिकली वी हैव बीन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चरिस्ट, डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, तो उसमें भी हमें काफी काटने पड़े हैं। सर अगर उन्होंने ऐसे काउंटर किया कि आपके सर, अभी आप कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमने काटे सर, फिर वो कहेंगे कि आपके हिसाब से फिर रोड्स बनानी नहीं चाहिए अगर फॉरेस्ट कवर को बचाना है सर। नहीं, उसके लिए हम क्या लेके आ रहे हैं? ग्रीन हाईवेज, हम रोड भी बना रहे हैं, और हम फिर साथ में ग्रीन बेल्ट भी लगा रहे हैं। दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बताओ। यस सर। सर यस एक सर, एक इसमें सर ये 152 भी। डी के ऊपर 1 लाख प्लांट लगाए गए हैं। हाँ, वो अभी दिखेंगे बहुत सारे, 4-5 साल में अच्छा रिजल्ट दिख, और सब जगह लगाए सर जा एक रहे हैं, चीज अब और है तो कि पॉलिसीज भी इसी हिसाब से बनाई जा रही है। हाँ अच्छा। सर जो फॉरेस्ट हैं सर, जब भी काटे जा रहे हैं तो उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वो चीज वो पॉलिसी जो है ना, एक लकूना है कहीं ना कहीं,
कि अगर हम रिप्लेस करें, जितने पेड़ काटे जाएं उतने ही लगाए जाएं। नहीं, अभी ये तो एक जैसे डेफिशिएंसी कैंपा रह है, गई। कैंपा के अंदर भी आ गया, यू हैव टू रिप्लेस द फॉरेस्ट। और यस इंडिया का फॉरेस्ट एरिया तो बढ़ ही रहा है कंपैरेटिवली, मतलब भले ही चाहे कम बढ़ाओ, बट वी आर इंक्रीजिंग इन सब्सिक्वेंट जो भी फॉरेस्ट रिपोर्ट्स हमारी आ रही हैं। कुछ जगह कम होगा, कुछ जगह ज्यादा होगा, बट ओवरऑल तो 1-2% अपना इंक्रीज ही हुआ है। 23, 23.5 के आसपास होंगे ना हम, अभी कितने हैं? यस सर, अभी इतना ही आसपास है, 23 पॉइंट कुछ है सर। हाँ सर इसके राजेंद्र। सब्सटैंशियल रीजन में तो यही कहा जाएगा सर कि जैसे अगर एक तो रिप्लेसमेंट रेट जो है वो नहीं है कि जितने काटे उतने लगाने की बात, और दूसरा हम्म सर एक चीज और है कि जो फॉरेस्ट लग रहे हैं या प्लांटेशन हो रहा है तो उसका सस्टेनेंस का प्रॉब्लम है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं जितने भी छोटे सैपलिंग्स लगाए जा रहे हैं। हाँ, उसमें जैसे देखो गांव में बनी होती है ना, तो यस गांव में सर। एक कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि बनी है उसको डेवलप करना, रीडेवलप करना, तो उससे भी यस फॉरेस्ट सर। एरिया बढ़ सकते हैं, गांव में भी लगाना, रोड के साथ, रेलवेज के साथ, या whatever। ठीक है, जोड़ सर के वो आसपास। एग्रीकल्चर में भी सर हमने स्टार्ट किया ना सर, जो एग्रीकल्चर फील्ड होते थे यस, पहले वहाँ पेड़ होते थे, उसका टैगलाइन भी है सर, हर पेड़ मेड पर पर मेड़, पेड़। मेड़ पर पेड़। हर हर मेड पर पेड़ सर। हाँ मेड़ पर मेड़, हाँ मेड़ पर पेड़। मेड पर पेड़ सर। हाँ मेड़ 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 होती है ना, मेड़, मेड़ पर पेड़। हाँ सर, बाउंड्री पे। हाँ और सर इस बार सर बजट के अंदर भी मियावाकी मेथड को स्पेशली मेंशन किया गया है कि यस। हरियाणा अडॉप्ट कर रहा है अब इस मेथड को। हाँ, प्राणवायु देवता स्कीम बता सकते हो, दे आर गिविंग 7500 रुपीज फॉर प्लांट हु आर 75 ईयर ओल्ड। तो प्राणवायु देवता पौधागिरी ले। चल रही है सर, क्या? पौधागिरी जो गवर्नमेंट ने पौधागिरी स्कीम कैंपेन। लगा रखी है स्कूलों में। पौधागिरी, पौधागिरी के बारे में बता सकते हो? ठीक है, एक बिहेवियरल भी ला सकते हैं, लाइफ इनिशिएटिव जो है ना, उनके हाँ हिसाब सर। से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, बिहेवियरल हो जाएगा। सर ठीक है इसमें एक चलो। फैक्ट है, क्या? 2023 में 20,000 हेक्टेयर लैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिए है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ओके, 20,000। ये पता, ये सर ये पता नहीं बजट में था, इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा कोट कर रखा था। श्योर है ये फैक्ट? यस सर, यस। ठीक है मोनिका। बाकी अभी के लिए क्या करेंगे कि अभी ये सेशन खत्म हो जाएगा, मैं एक ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के बाद पहले प्रायोरिटी बेसिस पे हरियाणा को कंप्लीट करेंगे और उस लिस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन का टाइम मैं बता दूंगा, थोड़ा सा रैंडम रहेगा क्योंकि हम जल्दी से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, और अभी क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए,